Hello friends, welcome to our YouTube channel Target Nursing. So friends, as you all know that in previous lecture we have studied about the placenta and formation of placenta, and we have seen the process of development of placenta, and now in this video we are going to discuss about placental abnormalities. Okay, so before starting the lecture, just to like, subscribe and share the video. So let's start it. Okay, so we are going to see the placental abnormalities today. So there are many placental abnormalities. So first we are going to see that is abruptio placenta. Okay, its name is abruptio placenta. Abruptio placenta is, what is abruptio placenta? Abruptio placenta is a separation of we are in this lecture I'm only going to tell you the few things about the abnormalities of placenta, because these the abruptio placenta and other placental disease like placenta previa we are going to study further in disease conditions. So now here we are going to see a brief description about it, not in detail. Okay, so I am going to tell you only the definition of these abnormalities and what they are. Okay, so first is abruptio placenta. Abruptio placenta is a separation of normally situated placenta. Okay, what it is? It is a separation of normally situated placenta from its uterine site of implantation after 20 weeks gestation but before the delivery of placenta. What happens in abruptio placenta? That it will separate from the normal situated placenta. मतलब क्या होगा कि जो हमारा नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा जो होता है, एज यू कैन सी इट्स नॉर्मल प्लेसेंटा एंड दिस इज प्लेसेंटल एब्रेप्शन. ठीक है, तो नॉर्मल प्लेसेंटा जो होता है हमारा, वो हमारे फंडस पे लाई करता है. ठीक है, बट क्या होता है इसमें क्या होता है कि एब्रेप्शन प्लेसेंटा में क्या होगा कि इसका क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा. जो हमारा प्लेसेंटा होगा उसका सेपरेशन हो जाएगा फ्रॉम नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स यूटेराइन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. ठीक है, जहाँ पर को जो हमारा प्लेसेंटा है वो इम्प्लांट हुआ है, वहाँ पर क्या होगा कि यूटेराइन साइड से जो इम्प्लांटेशन उसका हुआ है उससे उसका सेपरेशन हो जाएगा. ठीक है, एंड बट द बिफोर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, बिफोर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा ये सब होगा. और आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जब मदर की कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद भी प्लेसेंटा का सेपरेशन हो सकता है, और बिफोर डिलीवरी ही ये सेपरेशन होगा, क्योंकि नॉर्मली आफ्टर डिलीवरी तो सेपरेशन होता ही है फॉर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा इन द थर्ड स्टेज, बट दिस इज abnormality. ठीक है, this is abnormality, so it can refers to that it will happens before या after 20 weeks of gestation or before the delivery of placenta. So as you can see here, there is a difference of normal placenta and here the placental abruption. So what happens, you can see here, this is normal placenta which is attached to the fundus of the uterus and it is not separated, but here you can see that the placenta is separated. This is the placenta, but this is separated from the wall, the fundus region. ठीक है, so this is placental abruption, means the abnormal separation of situated placenta from the normal uterine site. Normal uterine site से जो placenta का क्या होगा, वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, उसे हम एब्रेप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं. दिस इज द एबनॉर्मेलिटी ऑफ वन ऑफ द एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेसेंटा. ओके, now the second abnormality is placenta previa. Okay, this is, it is placenta previa. So by only the name we can see that this is previa. Okay, this is previa means previous. Previa means previous. Okay, so placenta previa, you can see here definition: abnormally implanted placenta. Okay, it is abnormally implanted placenta. In abruptio placenta, what happened? abruptio placenta में क्या हो रहा था कि वो normally implanted था बट वो separate अपनी जगह से हो जा रहा था टाइम से पहले. बट यहाँ पर को क्या है, जो हमारा placenta है यहाँ पर क्या है कि
इस जगह पे हम देख सकते हैं कि जैसे प्लेसेंटा जो है वो एबनॉर्मली इम्प्लांटेड है, मीन्स जो उसकी नॉर्मल जगह है वहां पर वो इम्प्लांटेड नहीं होगा बल्कि वो कहीं और इम्प्लांटेड होगा। ठीक है, प्लेस टोटली और पार्शियली इन द लोअर सेगमेंट। नॉर्मली हमारा जो लोअर सेगमेंट पे, ठीक है, नॉर्मली जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो फंडस रीजन पे होता है, नॉर्मल जो होता है वो फंडस रीजन पे होता है। बट हियर क्या हो रहा है कि जो हमारा प्लेसेंटा है वो या तो टोटली या पार्शली, ठीक है, टोटली या पार्शली हमारे लोअर सेगमेंट पे, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, रेदर देन इन द फंडस। ठीक है, रेदर देन द फंडस मतलब कि फंडस पे सिचुएटेड होने के बजाय वो कहाँ पर को सिचुएटेड होता है, हमारा लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस पे। ठीक है, व्हेन द सर्विक्स बिगिंस to dilate and the effacement, when the cervix begins to dilate and efface, the placenta separate and allowing bleeding from the open vessel. So what happens that in placenta previa, as we can see that प्रीविया मीन्स प्रीवियस। ठीक है, जो प्लेसेंटा होगा वो सर्विक्स से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें बेबी की प्रेजेंटिंग पार्ट में हमें प्लेसेंटा दिखेगा। ठीक है, प्लेसेंटा शो होगा, प्रीवियसली हमें प्लेसेंटा शो होगा। ठीक है, इट इज एन एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा का एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन हो जाता है या तो टोटली या पार्शियली एट द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। ठीक है, नॉर्मली कहाँ पर हमारा सिचुएटेड होता है प्लेसेंटा, फंडस रीजन पे, बट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस पे वो सिचुएटेड होगा या पार्शियली या कंप्लीटली। ठीक है, और क्या होगा जब हमारा सर्विक्स जो होगा वो डायलेट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में, और इफेसमेंट होगा तो वहां पर प्लेसेंटा जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, हाँ, वो ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। ठीक है, अलाउइंग ब्लीडिंग फ्रॉम द ओपन वेसल्स, जिससे एंटीपार्टम हेमरेज भी हो सकता है। ठीक है, so as we can see here, this is low lying, there are 4 type of placenta previa: low lying, marginal, partial and complete। लो लाइन में क्या होता है कि देखो, एज यू कैन सी हियर, दिस इज हियर द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड, यहाँ पर को होना चाहिए था बट है कहाँ पर, यहाँ पर को इम्प्लांटेड है। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लांटेड है तो वो लो लाइंग ऑफ प्लेसेंटा है, सर्विक्स से, सर्विक्स की जो इंटरनल ओस है उससे ऊपर है। अब यहाँ पर को क्या हुआ है, ठीक है, लो लाइंग प्लेसेंटा दिस इज, एंड दिस इज मार्जिनल प्लेसेंटा, मींस इसमें जो सर्विक्स का जो इंटरनल ओस है इससे मार्जिनली, मतलब इसके मार्जिन पे उसे उसको कवर करा है। ठीक है, कंप्लीटली कवर नहीं करा है, मार्जिनली कवर करा है। एंड हियर व्हाट हैपन, पार्शियल प्रीविया, इसमें क्या होगा कि इसमें वो जो हमारा सर्विक्स है, सर्विक्स के इंटरनल ओस को पार्शियली कवर करेगा। ठीक है, इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स को क्या करेगा, इंटरनल ओस सर्विक्स के पार्शियली कवर करेगा। ठीक है, पार्शियली कवर करेगा। ओके, और इसमें क्या है, कंप्लीट प्रीवियस, वी कैन सी बाय नेम ओनली, कंप्लीट मींस कंप्लीटली वो हमारे इंटरनल उसको सर्विस की कंप्लीटली कवर कर लेगा। लो लाइन में क्या है कि इंटरनल उससे थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, मार्जिनल में मार्जिन में कवर करेगा, पार्शियल में पार्शियल इंटरनल उसको कवर करेगा, कंप्लीट में कंप्लीटली प्लेसेंटा जो होगा वो हमारे इंटरनल उसको कवर कर लेगा। दिस इज प्लेसेंटा प्रीविया की एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन हो रहा है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी विच इज वासा प्रीविया। ठीक है, it is vasa previa. Vasa previa is refers to vessels. Vasa is refers to vessels. Okay, blood vessels. So this is rare circumstances that may occur with velamitous insertion of the cord where the umbilical vessels cross the internal os presenting ahead of the fetus requires CS. इसमें क्या होगा, The vasa previa is a condition, इसमें क्या होता है कि it may occur with the velamitous insertion of the cord. ठीक है, velamitous insertion is also a abnormality. This is also an abnormality of placenta which we going to see further. ठीक है, इसमें क्या होता है वासा प्रीविया में, as we can see this is vessel and previa I have told you that is previous. ठीक है, तो जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो जैसे हमारे प्लेसेंटा प्रीविया में हमें प्लेसेंटा पहले दिखेगा, इसमें हमें वेसल्स पहले दिखेंगे। ठीक है, वो वेसल्स किस वजह से दिखेंगे, क्योंकि जो क्या है वो आपको वेलामेटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड हो रहा है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, वैसे अम्बिलिकल वेसल्स, इसमें क्या होता है, जो अम्बिलिकल वेसल्स जो होती है हमारी, अम्बिलिकल वेसल्स कौन सी होती है हमारी, 2 आर्टरीज होती है उसमें,
अम्बिलिकल में और 1 वेन होती है। ठीक है, तो जो ये अम्बिलिकल वेसल्स होती है हमारी, ये इंटरनल ओस को प्रेजेंटिंग अहेड ऑफ द फिटस, ठीक है, इंटरनल ओस को पूरा कवर करती है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द fetal vessels and this is completely covering the internal os of cervix। ठीक है, तो वासा प्रीविया में क्या होगा कि हमें प्रेजेंटिंग पार्ट, और जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें सबसे पहले हमें वेसल्स दिखेंगी। ठीक है, ये वेसल्स जो है किसकी वजह से हो रहा है, वेलोमेटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो दिस, और इस कंडीशन में सिर्फ सिजेरियन सेक्शन हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, दिस इज अबाउट वासा प्रीविया कि रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है, वेलोमेटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड की वजह से होता है, अम्बिलिकल वेसल्स जो होती है हमारी इंटरनल ओस को कवर करती है। ठीक है, देन मूव टू द नेक्स्ट abnormality which is वेलोमेटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। एज वी कैन सी here, this is vasa previa is caused mainly by the वेलोमेटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। and what is वेलोमेटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, we are going to see now। 1% of singleton term births। ठीक है, सिंगलटन टर्म बर्थ मीन्स 1 बर्थ में 1 बेबी होगा। ठीक है, 1 बर्थ में सिंगलटन मतलब कि ड्यूरिंग द बर्थ ओनली 1 बेबी जो है वो है डिलीवर हो रहा है। ठीक है, बर्थ में 1 बेबी, सिंगलटन टर्म बर्थ। वेसल्स ऑफ कॉर्ड सेपरेट अ डिस्टेंस अवे मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा सराउंडेड ओनली बाय अ फोल्ड ऑफ amnion। ठीक है, we can see here that is normal umbilical cord insertion। ठीक है, this is normal, this is placenta and umbilical cord inserted is here the center from the placenta। ठीक है, fetal membrane से attached हो रखा है and then ये सीधे हमारे क्या कहते हैं बेबी के एब्डोमेन के सेंटर से जाके अटैच्ड है umbilical cord। ठीक है, देन वेलोमेटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड में क्या होता है कि दिस इज द प्लेसेंटा एंड हियर द एक्सपोज्ड ब्लड वेसल्स, इसमें क्या होती है हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, एक्सपोज ब्लड वेसल्स होती है। अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, नो एक्सपोज्ड ब्लड वेसल्स, नो एक्सपोज्ड ब्लड वेसल्स। बट हियर क्या है, वेलोमेटस कॉर्ड ऑफ इंसर्शन में एक्सपोज ब्लड वेसल्स होंगी, फिर जाके वो बेबी से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि वासा प्रीविया एंड वेलोमेटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे है, दिस इज प्लेसेंटा एंड जो ये एक्सपोज ब्लड वेसल्स है ये क्या करेंगी, नॉर्मली ये क्या इस टाइम पे क्या होगा, वासा प्रीविया के टाइम पे ये पूरा ऐसे हमारे इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स को कवर करेंगे, ऐसे इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स को, इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स को ऐसे कवर कर देंगी ये जो ओपन एक्सपोज ब्लड वेसल्स, और फिर यहाँ से जाके बेबी के सेंटर ऑफ द एब्डोमेन से अटैच्ड होंगी। ठीक है, दिस इज वेलोमेटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज वेलोमेटस कॉर्ड इंसर्शन कि यहाँ पे पूरा राउंड हमारा वेलोमेटस कॉर्ड ऑफ इंसर्शन इस टाइप का भी हो सकता है कि वो इंटरनल ओस को कवर ना करे। लेकिन अगर वासा प्रीविया है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वो हमारे इंटरनल ओस को कवर करके बेबी के एब्डोमेन के सेंटर से अटैच्ड होंगी। दिस इज वेलोमेटस कॉर्ड ऑफ इंसर्शन विद वासा प्रीविया, और नॉर्मल वेलोमेटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड ये होता है। ठीक है, now move to the next abnormality which is placenta accreta। ठीक है, so the definition of placenta accreta is a rare condition or condition all or a part of placenta। ठीक है, all or a part of placenta adhere to the endometrium। इसमें क्या होता है कि या तो पूरा पार्ट या फिर part of placenta is attached to the endometrium। ठीक है, adherent to the endometrium, the normal spongy layer of decidua। ठीक है, what is decidua, we have seen in earlier classes, we have studied about it, it is the endometrium of प्रेग्नेंट यूट्रस। ठीक है, सो द नॉर्मल स्पॉन्जी लेयर डेसिडुआ इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेसिडुआ जो होती है हमारी एब्सेंट होती है और डिफेक्टिव होती है। ठीक है, देयरफॉर द प्लेसेंटल विलाई ग्रोज डाउन थ्रू द एंडोमेट्रियम इनटू द मायोमेट्रियम, जिसकी वजह से क्या होता है, डेसिडुआ यहाँ पर कोई एब्सेंट है उसी को एरोड करके उसी में जो विलाइज होती है उसी से हमारे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर को क्या है कि डेसिडुआ जो है वही एब्सेंट है या डिफेक्टिव है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटल विलाई है हमारी वो हमारे एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम में चले जा रही है ग्रो होके। ठीक है, दिस इज कॉज द प्लेसेंटल एक्रेटा। ठीक है, अब इसके
तीन टाइप होते हैं, एक्रीटा, इनक्रीटा एंड परकेटा। और एक्रीटा में क्या होता है, विलाई एक्सटेंड्स टू फार इनटू द एंडोमेट्रियम एंड इनक्रीटा में विलाई इन्वेड, ठीक है, इनक्रीटा में इन्वेड इनटू मायोमेट्रियम एंड परकेटा में विलाई इन्वेड थ्रू द मायोमेट्रियम टू द सीरोसा लेयर, ठीक है। दिस इज द डायग्राम प्लेसेंटल नॉर्मल प्लेसेंटा वर्सेस प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम, ठीक है। दिस इज नॉर्मल प्रेगनेंसी, द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द टेम्पररी लेयर इन द यूट्रस, ठीक है, and that shed at delivery which is decidua, प्लेसेंटा अटैच्ड हमारे डेसिडुआ से नॉर्मल में, ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में। अब हम एक्रीटा में देखते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है, when the placenta attached too deeply into the uterine wall, ठीक है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर कोई ये यूटेराइन वॉल है उससे टू डीपली वो अटैच्ड है, दिस इज प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा इनक्रीटा में क्या है, when placenta attaches into the uterine muscles, जब प्लेसेंटा जो है वो यूटेराइन मसल्स को भी यहाँ पे को कवर कर ले रहा है, ठीक है, ये एक्रीटा इनक्रीटा है। देन प्लेसेंटा परकेटा में क्या है, when the placenta goes completely through the uterine wall, ठीक है, when the placenta goes completely through the uterine wall sometimes invading nearby organs like the bladder। अभी यहाँ पर को उसने सिर्फ यूटेराइन वॉल को कवर करा था, इन्वेट करा था, यहाँ पर को यूटेराइन वॉल को इन्वेट करा था, ठीक है। फर्स्ट वाले में एक्रीटा में यूटेराइन वॉल उसने इन्वेट करा, ठीक है। देन सेकंड में क्या, प्लेसेंटा इनक्रीटा में क्या करा, यूटेराइन मसल्स भी इन्वॉल्व कर ली, ठीक है। अब प्लेसेंटा परकेटा में क्या करा है कि वो नियर बाय ऑर्गन्स, वो लेयर से बाहर चले जाएगा और ऑर्गन्स में इन्वेड स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जैसे कि ब्लैडर, इसमें इन्वेजन स्टार्ट कर देगा। दिस इज अबाउट द प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा एंड प्लेसेंटा परकेटा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट abnormality which is Battledore placenta। Battledore placenta, cord inserted at or near the placental margin rather than in the center, as we know that the normally this is the normal cord, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि इसमें जो हमारा जो कॉर्ड होता है वो नॉर्मली सेंटर से अटैच होता है प्लेसेंटा के, एज यू कैन सी हियर, बट इन बैटलडोर प्लेसेंटा व्हाट हैपेंस, द कॉर्ड इज इंसर्टेड एट और नियर द प्लेसेंटल मार्जिन, दिस इज द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा एंड द कॉर्ड इज अटैच्ड फ्रॉम द मार्जिन, प्लेसेंटल मार्जिन, ठीक है, कॉर्ड इंसर्टेड एट और नियर द प्लेसेंटल मार्जिन रेदर देन इन द सेंटर, सेंटर से नॉर्मली अटैच्ड रहता है, लेकिन बैटलडोर इंसर्शन में क्या होता है, मार्जिन से अटैच्ड रहता है, ऐसे, ठीक है। दिस इज बैटलडोर इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा। देन सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, द fetal surface of the placenta is exposed through a ring or a chorion or amnion opening around the umbilical cord। इसमें क्या होता है कि इसमें ना एक ऐसी ओपेक रिंग सी फॉर्म हो जाती है, as you can see here, the opaque ring around the this the opaque ring around the प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है, दिस इज पार्शियली, ठीक है, ये पार्शियल सर्कमवेलेट है, इतने में ही है, और कंप्लीट में देखो पूरी तरह से यहाँ पर को पूरी तरह से एक ओपेक रिंग फॉर्म हुई है अराउंड द प्लेसेंटा, ठीक है। अ थिकन ग्रेइश व्हाइट रिंग ऑन द fetal surface created by double fold of amnion and chorion with degenerating decidua and fibrin in between, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एमनियन और कोरियन की डबल लेयरिंग फॉर्म हो जाती है, एक रिंग ओपेक रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ओपेक रिंग फॉर्मेशन इन सर्कमवेलेट प्लेसेंटा ऑफ किसकी, कोरियन एंड एमनियन की डबल लेयरिंग हो जाती है, दिस इज सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, ओके। नाउ द सक्सेंटुएट प्लेसेंटा, सक्सेंटुएट में क्या होता है, वन और मोर एक्सेसरी लोब्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, वन और मोर एक्सेसरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं प्लेसेंटा में। Of the villi have developed vessels from the major to the minor lobe are only supported by the membrane. This increases the likelihood that the minor lobe may be retained during the third stage of labor. Succinturate में क्या है? As you can see here, this is the placenta, and you can see here this is the extra lobe is present on the placenta. ठीक है, this extra lobe is what
मेजर टू माइनर लोब आर ओनली सपोर्टेड बाय द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये खाली देखो हम देख सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है इसी से सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, दिस इंक्रीज लाइक्लीहुड द माइनर लोब आर मे बी रिटेन ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जो माइनर लोब है, जब हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पे हैं, जब हम प्लेसेंटा का सेपरेशन और एक्सपल्शन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी है, अगर 6 इंटीरियर प्लेसेंटा है, कि जो हमारा माइनर लोब है उसके रिटेन रहने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, दिस इज 6 इंटीरियर लोब ऑफ प्लेसेंटा। ओके, so we have seen today the abnormalities of placenta. First, we have seen the placenta abruptio placenta, in which the placenta is separated from its normal position. ठीक है, and it can happen after 20 weeks of delivery and before the delivery of placenta. And then we have seen the placenta previa. In this, but the abnormal implantation of placenta in the lower uterine segment, it is low lying, marginal, partial and complete. Then vasa previa, what happens? With the velamitous insertion of cord, the umbilical vessels cross the internal os and presenting ahead of the fetus. And then velamitous insertion of cord, in which there is exposed blood vessels of umbilical cord. ठीक है, so there is a velamitous insertion of cord and velamitous cord insertion with vasa previa we have seen. ठीक है, then placenta accreta, a rare condition in which all or a part of placenta are adhered to the endometrium. It is of three types: accreta, increta and percata. We have seen there. Battledore insertion of placenta. In this, what happens? The umbilical cord is attached at this margin of the placenta, not from the center. ठीक है, then circumvallate, a opaque ring form around the placenta of double layering of amnion and chorion. ठीक है, then 6 inturiate lobe of placenta, one or more extra lobes present of the placenta, and this extra lobe or the minor lobe is only supported by the membrane, and it has a major chance to get retained after the third stage of delivery. Okay, and so this is all for today, and in next lecture we are going to study about the uh, abnormalities of umbilical cord, or about the umbilical cord we are going to see in next video. Okay, so this is all for today, and I hope you understood what I have taught you. So thank you, and before going, and don't forget to give the feedback of this video in comment section, and don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you so much.